प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बैठक के बाद क्या कुछ कहा जा रहा है शीर्ष नेताओं के द्वारा, गृह सचिव के द्वारा, लिए चलते हैं। Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. समझौते को रोका गया है, पाकिस्तानियों का वीजा रोका गया है, ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। आतंकी हमले पर विदेश मंत्रालय का बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। सिंधु जल समझौते को रोका गया है, तमाम बड़े फैसले, और पाकिस्तान राजनयिक को 1 सप्ताह के अंदर दूतावास खाली करने को कहा गया है। पाकिस्तानी दूतावास बंद किया जाएगा। ये बड़े फैसले लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। कल जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने
कई बड़े फैसले लिए हैं। आतंकी हमले पर विदेश मंत्रालय का बड़ा फैसला, सिंधु जल समझौते को रोका गया है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानियों का वीजा रोक दिया गया है। पाकिस्तान को लेकर अब सख्त एक्शन में सरकार नजर आ रही है। भारत सरकार 1 सप्ताह में पाकिस्तानी राजनयिक दिल्ली छोड़ें, अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद किया जाएगा। आतंकी हमले पर विदेश मंत्रालय का बड़ा फैसला। जिस तरह से भारत के 27 से 28 निर्दोष और निहत्थे नागरिकों को मारा आतंकियों ने, मौत के घाट उतारा, उसके बाद भारत सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्त्री ने प्रेस ब्रीफिंग के जरिए पूरी जानकारी दी है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमाकांत हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत जी, बड़े फैसले लिए गए भारत सरकार एक्शन मोड में, क्या कुछ फैसले हैं, विस्तार से बताएं। चाहूंगा जैसे आपसे कल पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था पर्यटकों पर, जिसमें 26 लोग मार दिए गए थे। उसके बाद केंद्र सरकार यानी भारत सरकार सख्त फैसले लिए हैं और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो पाकिस्तानी उच्चायोग भारत में है उसे बंद कर दिया गया है और जल्दी ही से इसे उच्चायोग को भारत वापस भेजने का दे दिए गए हैं, वापस जाने के। इसके अलावा पाकिस्तानी वीजा था उसे रद्द किया गया है और 48 घंटे जो भी भारत देश में पाकिस्तानी रह रहे हैं उन्हें देश छोड़ना होगा। इसके अलावा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि भारत सिंधु जल समझौता था उसे रद्द कर दिया गया है। इस तरह के कुल मिला के 7-8 फैसले लिए गए हैं जो कि सीधे सीधे भारत सरकार के कड़े रुख पाकिस्तान को लेकर एक निर्देश देते हैं। सौरभ, बिल्कुल बड़ा रुख है और कड़ा रुख है, ये कहना भी इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। आगे बड़ी कार्रवाई और भी हो सकती है, इस बात के संकेत माने जा सकते हैं रमाकांत जी। आप कह सकते हैं, जिस हिसाब से मैंने बताया आपको कि पाकिस्तानी वीजा रद्द किया गया पाकिस्तानियों को, साथ में ये भी कहा गया 48 घंटे के अंदर अंदर आप भारत छोड़ दें और पाकिस्तानी राजनयिक को वापस भेजने की बात कही है। 1 हफ्ते में उच्चायोग खाली करने की बात कही गई है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में और भी सख्त कदम भारत सरकार उठा सकती है पाकिस्तान को लेकर। बहुत शुक्रिया रमाकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। टोटल टीवी के स्टेट एडिटर प्रदीप कुमार भी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनको रुख करेंगे। प्रदीप जी, कई बड़े फैसले लिए गए हैं, 7 से 8 बड़े फैसले। आतंकी हमले के बाद एक्शन मोड में भारत सरकार नजर आ रही है। कहा जा सकता है कि किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है पाकिस्तान को भारत सरकार। देखिए बिल्कुल, और एक बड़ा निर्णय यहाँ पर सीसीएल बैठक के बाद ये देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर एक आतंक को जवाब देने से पहले निश्चित तौर पर ये निर्णय जो है कहीं ना कहीं बड़ा असर डालेंगे और दूरगामी साबित रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो निर्णय लिए गए हैं सीसीएल बैठक के बाद, सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने का निर्णय, पाकिस्तान हाई कमीशन और अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने का निर्णय, साथ ही पहलगाम हमले के बाद जो ये एक्शन देखने को मिल रहा है, तो इसकी उम्मीदें प्रयास पहले ही लगाए जा रहे थे, लेकिन जो आतंक को करारा जवाब देने की मांग हो रही है उस पर क्या एक्शन होगा, ये तो निश्चित तौर पर सही टाइमिंग उचित समय पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस बीच सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई गई है, पाकिस्तान हाई कमीशन और अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने का निर्णय यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। जिस तरीके से आतंकियों ने अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की, उसके जवाब में एक बड़ा निर्णय ये माना जा रहा है। 1 हफ्ते में उच्चायोग खाली कर पाकिस्तान, ये अल्टीमेटम भारत की ओर से दिया गया है। इसके अलावा भी जो निर्णय लिए गए हैं वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये कह सकते हैं सौरभ की एक जो भारत में आक्रोश और इस घटना के बाद बदले की मांग की जा रही है, उस पर अमल शुरू कर दिया है केंद्र सरकार ने। बदले की कार्रवाई, एक बड़ी कार्रवाई ये होगी, क्योंकि अब सारे संबंध तोड़े जाएंगे पाकिस्तान के साथ, ऐसा नजर आता है इन फैसलों के बाद। अब बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल रही है, 7 से 8 बड़े फैसले सीसीएस की बैठक में लिए गए, किस तरफ इशारा करते हैं? अगर इसे कंक्लूसिवली देखने की कोशिश करें तो एक बड़ी चोट पाकिस्तान को, जिस तरह से सीमा पार से आतंक की चोट वो भारत को गाहे बगाहे देता रहा है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पर ये हमला हुआ है और सीमा पार आतंकवाद से लिंक
निकल कर आया है, तो इसके बाद ये एक्शन तो होना ही था। इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित तौर पर इस एक्शन को लेकर ये कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार ये बड़े एक्शन आने वाले दिनों में भी लेगी। सिंधु जल समझौता रोकने की बात हो या फिर दूतावास खाली कराने का अल्टीमेटम हो, ये बड़े फैसले लिए गए हैं। और निश्चित तौर पर जो सर्च ऑपरेशन है अभी भी वहाँ पर चल रहा है और इसको लेकर बड़े अपडेट मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की यहाँ पर उम्मीदें की जा रही हैं, और उसमें ये एक बार फिर से बता दूं दर्शकों को जो फैसले लिए गए हैं, यह सिंधु जल समझौते को रोका गया है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास को बंद किया जाएगा। 48 घंटे में पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। तो कुल मिलाकर ये बड़े निर्णय आज की CCS बैठक के बाद देखने को मिल रही हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इस बारे में जानकारी दी है और इस निर्णयों के साथ ही अब भारत के अगले एक्शन पर तमाम नजरें लगी हैं। जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा है, जब उचित समय पर जवाब दिया गया बालाकोट एयर स्ट्राइक को या फिर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए आतंकवादियों को मंसूबे ध्वस्त किए गए, तो अब एक बड़ा एक्शन लेते हुए यहाँ पर भारत की ओर से सरकार दिख रही है, ऐसा नजर आ रहा है। प्रदीप जी, बेहद अहम सवाल वो सवाल ये कि इन तमाम बड़े फैसलों का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि तमाम तौर पर अमेरिका जैसे सुपर पावर ने भी इस आतंकी हमले की निंदा की। खुद ट्रंप ने फोन किया प्रधानमंत्री को और इस हमले पर कहीं ना कहीं समर्थन होने की बात भी कही है। उधर इजरायल ने भी दो टूक कहा है कि भारत सक्षम है इस हमले से निपटने के लिए और भारत जानता है कि किस तरह से कोप अप करके सामना करना है दुश्मनों का। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की बात की जाए तो इन फैसलों का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, जिस तरीके से ये आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में और उसके बाद पूरी दुनिया से जो भारत को समर्थन मिला, कई जो राष्ट्र प्रमुख हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर इस घटना के लिए संवेदना जताई। भारतीय नागरिकों के लिए अपनी संवेदना जताते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की। ये जरूर है कि पूरी दुनिया में ये मैसेज गया है कि आतंक का कोई चेहरा नहीं होता और कोई उसका नाता किसी धर्म विशेष से नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से इसमें धर्म के आधार पर यहाँ पर ये गोली चलाई गई, ये भी विवाद कभी से बना हुआ है। तो ये जरूर है कि एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। आतंकियों को अब एक करारा जवाब देने की तैयारी, और इसीलिए जो सरकार संरक्षण देती है आतंकवाद को पालती पोसती है, पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करने के लिए ये पहल की गई है और इसीलिए समझौते रोके गए हैं। असर निश्चित तौर पर पड़ेगा और पाकिस्तान जो पहले से ही तंगहाली में है, भारत की कार्रवाई के बाद कहीं न कहीं आर्थिक रूप से कमजोर होगा। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर पड़ेगा। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो घटनाक्रम से जुड़े हैं, लेकिन इसको लेकर अब सरकार आगे का प्लान भी तैयार करेगी। लेकिन इस बीच कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान को प्रभावित करेंगे, सीधे तौर पर ये नजर आने वाला है। प्रदीप जी, आप बने रहे हमारे साथ।